آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ یادادری پاور پلانٹ کے دوسرے یونٹ کا افتتاح، چیف منسٹر نے اسے قوم کے نام کیا وقف۔ گزشتہ سال پارٹی کے لیے انتہائی کٹھن رہا، کے ٹی آر کا بیان۔ ریاست میں ایک مرتبہ پھر زلزلے کے جھٹکے، محبوب نگر میں واقعہ، کوئی جانی و مالی نقصان نہیں۔ حیدرآباد میں ایمبولینس کی چوری کا عجیب و غریب معاملہ، فلمی انداز میں پولیس نے تعاقب کر کے سارق کو پکڑ لیا۔ کار نہر میں گر پڑی، حیدرآباد کے 5 نوجوان ہلاک۔ اور پشپا 2 بھگدڑ واقعہ، خاتون کی موت کا معاملہ، فلم اداکار الو ارجن کا اظہار رنج، متاثرہ خاندان کے لیے 25 لاکھ کی مالی امداد کا اعلان۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پٹی پر حملے میں 6 بچوں اور 5 خواتین سمیت کم از کم 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے وسطی علاقے میں واقع نصرت پناہ گزی کیمپ میں النادی خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک مکان پر بمباری کی۔ اس حملے میں 6 بچوں اور 5 خواتین سمیت کم از کم 20 فلسطینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شمالی غزہ میں کمال عدوان ہاسپٹل پر اسرائیل کے حملے میں کم از کم 29 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی کا کہنا ہے کہ شمالی شہر بیت الاحیا کے کمال عدوان ہاسپٹل کے ارد گرد اسرائیلی حملوں میں طبی عملے سمیت 29 افراد شہید ہو گئے۔ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر حسام ابو سفیہ نے AFP کو بتایا کہ ہاسپٹل کے شمالی اور مغربی اطراف میں فضائی حملوں کا ایک سلسلہ جاری تھا، جس میں شدید اور راست فائرنگ کی گئی۔ روس کی جانب سے یوکرین کے زاپوریژیا ریجن پر بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں 12 یوکرینی شہری ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی بمباری کے نتیجے میں کئی عمارتوں اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ ملٹری ایڈمنسٹریٹر کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ متاثرہ علاقے میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ بہوجن سماجوادی پارٹی کے قومی صدر مایاوتی نے سماجوادی پارٹی اور کانگریس پر اتر پردیش کے سنبھل میں سیاسی فائدے کے لیے فرقہ وارانہ کشیدگی کا فائدہ اٹھانے کا الزام لگایا ہے۔ ہفتے کو لکھنؤ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ دونوں پارٹیاں ووٹ حاصل کرنے کے لیے سنبھل میں مسلم کمیونٹی کے اندر تقسیم کو ہوا دے رہی ہے۔ مایاوتی نے دعویٰ کیا کہ سماجوادی پارٹی اور کانگریس دیگر اہم مسائل پر مسلم ووٹوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ان کے ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور संसद में विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियां मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुँचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुँचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह और महाराष्ट्र के नवमुंतखब नायब वजीर आला अजीत पवार को 2021 में दायर एक बेनामी केस में इनके और इनके खानदान से वाबस्ता 1000 करोड़ की जायदादों से महकमे इनकम टैक्स ने क्लीन चिट दे दी है। बेनामी जायदादों के लेन देन की रोकथाम के बाद एपीलेट ट्रिब्यूनल ने इनके और इनके खानदान के खिलाफ इल्जामात को मुस्तरद कर दिया।
ट्रिब्यूनल के मुताबिक महकमे इनकम टैक्स अजीत पवार और उनके खानदान के साथ सेल की गई जायदादों के दरमियान कोई ताल्लुक जोड़ने में नाकाम रहा। मशरकी दिल्ली के शाहिदरा में दो नामालूम हमलावरों ने एक 52 साल ताजिर का कत्ल कर दिया जो सुबह की सैर करने के लिए रवाना हुआ था। मुतवफ़ी सुनील जैन को कई बार गोली मार दी गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। तैलूक जैन बर्तनों का कारोबार किया करता था। वो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से अपनी स्कूटी पर घर वापस आ रहा था जब नामालूम हमलावरों ने फर्श बाजार के इलाके में उस पर फायरिंग कर दी। पीसीआर कॉल रिसीव हुई है 8:36 पर सुबह मॉर्निंग में। उसमें कॉल में ये था कि दो लड़के बाइक पर गोली मारकर चले गए, ये कॉल में था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि एक सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है, 3-4 गोलियां लगी हैं उसको, और हमें कुछ राउंड्स भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है, ये बात है। सुनील जैन बर्तन की दुकान है इनकी और 52 साल इनकी उम्र है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से वापस आ रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ। अभी तक परिवार मना कर रहा है कि इस तरीके की कोई धमकी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं दी हुई है। परिवार इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर रहा है। अभी हमारे पास इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आकांक्षा मावी नामी एक 28 साल खातून एक खानगी हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देने के बाद लिफ्ट में फंस जाने की वजह से हलाक हो गई। बताया गया है कि डिलीवरी के बाद आकांक्षा को ऑपरेशन थिएटर से लिफ्ट के जरिए कमरे में मुंतकिल किया जा रहा था। लिफ्ट शुरू होते ही इसकी तारें जल गई जिससे लिफ्ट क्रैश हो गई। आकांक्षा की गर्दन दरवाजे के दरमियान फंस गई थी जिसके नतीजे में फ्रैक्चर हो गया था। हॉस्पिटल के 2 दीगर अफराद भी इसके साथ फंस गए, ताहम उन्हें मामूली चोटें आई। पुलिस के मुताबिक आकांक्षा के अहले खाना ने शिद्दत से मदद के लिए पुकारा, लेकिन डॉक्टर और अमले के दीगर अरकान मौके से फरार हो गए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज नलगोंडा जिले के दामरला में यादाद्री पावर प्लांट के दूसरे यूनिट का इफ्तिताह करते हुए इसे कौम के नाम वक्फ किया। बादजा उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ मिलकर यादाद्री थर्मल पावर स्टेशन के कामों का मुआयना किया। नलगोंडा जिले के दामरला मंडल के वीरलापालम के पास दरिया कृष्णा के करीब बरखी पैदा करने के 4 पावर यूनिट तामीर हो रहे हैं। इसके हर एक यूनिट में 800 मेगावाट बरखी पैदा की जाएगी। पहला यूनिट चंद दिन कबल ही शुरू किया गया था और आज दूसरे यूनिट का इफ्तिताह अमल में आया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की 1 साला मियाद की तकमील के मौके पर शहर हैदराबाद में फूड फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें सरकर्दा होटल्स के स्टॉल्स लगाए गए हैं। शहर के पीवी नरसिम्हा राव मार्ग टैंक बंड पर ये स्टॉल्स लगाए गए हैं जो पीर तक खुले रहेंगे। इन स्टॉल्स में कई अक़साम के खाने की अशिया होंगी। इन स्टॉल्स में हैदराबादी, मुगलाई, तेलंगाना, एपी के ग़िज़ाई आइटम्स के साथ साथ बेकरी आइटम्स भी शामिल है। साथ ही हमडा ग्राउंड्स पर म्यूजिकल नाइट भी मुनक्किद की गई है। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने अपोजिशन लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उन्हें सेक्रेटरिएट के रूबरू नस्ब किए जाने वाले तेलुगु तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब में शिरकत की दावत दी। वजीर मौसूफ ने आज मेदक जिले के एरावली में वाक़ चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस पहुंचकर उन्हें सरकारी तौर पर दावतनामा हवाले किया। बादजा मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा
कि 9 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट के पास नस्ब किए जाने वाले तेलुगु तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब में प्रोटोकॉल के तहत मुख्तलिफ शख्सियात को मदऊ किया जा रहा है। जो तेलंगाना की निशान तेलंगाना तल्ली का स्टैचू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें उस मौके पे, उस खुशी मौके पे गवर्नर साहब को और यूनियन मिनिस्टर जो तेलंगाना से रिप्रेजेंट करते हैं किशन रेड्डी जी को हमने इनविटेशन दिया है सरकार की तरफ से, और अभी अपोजिशन लीडर के पास भी जा रहे हैं। बाद में हम यूनियन मिनिस्टर बंडी संजय जी और असदुद्दीन ओवैसी को भी हम मिलके ये इनविटेशन देंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग इस जलसे में शामिल हो और जो तेलंगाना तल्ली का रेस्पेक्ट बढ़ाए। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा है कि गुज़िश्ता साल बीआरएस पार्टी के लिए इंतहाई कठिन साल रहा। पार्टी के अहिया के 25 साल में इस तरह के हालात कभी देखने में नहीं आए। तेलंगाना भवन में बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली बालाकिशन की जानिब से तैयार करदा शॉर्ट फिल्म के मुशाहिदे के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल असेंबली इंतखाबात में गैर मुतवक्के तौर पर बीआरएस को शिकस्त हुई। कांग्रेस के वादों से मुतासिर होकर अवाम ने उसे कामयाबी दिलाई। गुज़िश्ता साल पार्टी की रुकन काउंसिल कविता को 5 माह जेल में रहना पड़ा और इसी साल लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस को एक भी नशिस्त नहीं मिली और पार्टी के 10 अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि पार्टी कायम होकर 25 साल का अरसा हो गया, लेकिन इस तरह के हालात कभी नहीं देखे गए। నిజంగా ఈ సంవత్సరం మనం ఎదుర్కొన్న అత్యంత విషమ సంవత్సరం అని ఎందుకన్నా అంటే ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి, ఎన్నెన్ని అనుభవాలు, ఎన్నెన్ని ఆటుపోట్లు. శాసనసభ ఎన్నికల్లో అనుకోకుండా మనం ఊహించని విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన అడ్డగోలు హామీలతోని వారు ప్రజలను కొంత అక్కడ ఇక్కడ మోసం చేసి 420 హామీలు ఇచ్చి 6 గ్యారంటీలని 100 రోజులని రకరకాల మాటలు చెప్పి మొత్తానికి గట్టెక్కినారు. మొత్తానికి మనకంటే 1.8% ఓట్లు ఎక్కువ సాధించినారు. కేవలం 4 లక్షల ఓట్లు, నిజంగా చెప్పాలంటే పోలైన ఓట్లను చూస్తే కేవలం 4 లక్షల ఓట్లు మనకంటే ఎక్కువ వచ్చినాయి. కానీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక్క ఓటు వచ్చినా వారిదే గెలుపు కాబట్టి వారు గెలిచినారో ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినారు. వచ్చిన తర్వాత మనకి వెంటనే మన సారుకు తుంటి ఎముక విరగడం, దాదాపు 3 నెలల పాటు వారు ఆసుపత్రి పాల్గొవడం, ఇదంతా కూడా ఒకవైపు అదొక సవాల్. మరొక వైపు ఇక్కడ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు రావడం, అదే సమయంలో మరి కేసీఆర్ గారి కూతురైన మన నాయకురాలు కవిత గారిని అరెస్ట్ చేయడం, 5.5 నెలల పాటు జైల్లో పెట్టడం, తిహార్ తీసుకొని పోయి. ఇంకోవైపు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మనకు ప్రతికూల ఫలితం రావడం, మరొక వైపు మన పార్టీ బ్యానర్ మీద గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు 10 మంది మనం విడిచిపెట్టి పోవడం. నిజానికి ఇంకో పార్టీ అయితే కుంగిపోతుండే, ఇంకో పార్టీ అయితే ఈ దెబ్బలకు తట్టుకోలేక శరణుజొచ్చి అయ్యో మిగ మాత్రం కాదు అని చెప్పి జావగారిపోతుండే. కానీ పోరాటాల నుంచి పుట్టిన పార్టీ, ఉద్యమాలనే ఉగ్గుపాలుగా మరి ప్రారంభించబడ్డ పార్టీ, త్యాగాల పునాదుల మీద, మసనాచారి గారి మాటలో చెప్పాలంటే పదవీ త్యాగంతో ప్రారంభమై ప్రాణ త్యాగం చేస్తానని చెప్పి సిద్ధపడి చివరికి రాష్ట్రాన్ని సాధించిన పార్టీ కాబట్టే కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో గత సంవత్సర కాలంగా కూడా వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకునే ఇవాళ నిటారుగా నిలబడ్డాం. तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 इम्तिहानात के हॉल टिकट्स को 9 दिसंबर से कमीशन की वेबसाइट पर जारी करने का ऐलान किया है। कमीशन के सेक्रेटरी नवीन निकोलस ने अपने एक बयान में कहा कि रियासत भर में ग्रुप 2 के इम्तिहानात 15 और 16 दिसंबर को मुनक्किद होंगे। ग्रुप 1 की 783 जायदादों के लिए 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने दरखास्त फॉर्म दाखिल किए हैं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने दूरदराज मुकामात पर जाने वाले मुसाफिरीन के लिए शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए एक इख्तराई नजरिया पेश किया है। अहम इलाकों से आने वाले मुसाफिरों के लिए पिकअप वैन का इंतजाम किया गया है। आरटीसी ने आज से इन खिदमात को यकीनी बनाया। ओहदेदारों ने बताया कि ECIL से एलबी नगर तक पिकअप वैन की सहूलत फराहम की गई है। आरटीसी के मुताबिक विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, तिरुपति, ओंगोल, नेल्लोर और कंदुकूर रूट्स पर जाने वाले मुसाफिरों के लिए सहूलत के लिए इन पिकअप वैन्स का इंतजाम किया गया है।
बीआरएस मुखर्राना पार्टी का इजलास पार्टी सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के सिद्दीपेट जिले की एर्रावली में वाक़ फार्म हाउस में इतवार दोपहर मुनक्किद किया जाएगा। इस इजलास को अहमियत हासिल हो गई है क्योंकि पीर से तेलंगाना असेंबली का सरमाई सेशन शुरू होने वाला है। बीआरएस के अरकान असेंबली अरकान काउंसिल को हिदायत दी गई है कि इस इजलास में शिरकत करें, जिसमें पार्टी की क़यादत असेंबली में उठाए जाने वाले मसाइल और हिकमत अमली पर गौर व खौस करेगी। महबूबनगर जिले के कुछ इलाकों में हफ्ते को हल्के जलजले के झटके महसूस किए गए। हुक्काम के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3 दर्ज की गई। ये झटके मामूली थे और किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वाज़ेह है कि हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए थे। 4 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के जिले मुलुग में रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई थी। यादगिरी गुट्टा के करीब कार जलालपुर झील में गिर पड़ी। इस हादसे के वक्त कार में 6 अफराद सवार थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई जबकि एक और नौजवान महफूज रहा। यह हादसा इतवार की सुबह तकरीबन 5 बजे पेश आया। पुलिस को इमरजेंसी कॉल के जरिए सुबह तकरीबन 5:27 पर इत्तला मिली। पुलिस ने बताया कि महलूकीन की उम्र 19 से 23 वर्ष के दरमियान है, जो हालत नशा में थे। इस बात की तस्दीक इस हादसे में बच जाने वाले 21 साल यादव ने की, जो बोडुपल्ला इलाके का रहने वाला बताया गया है। महलूकीन की शाख हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले वंशी, दिनेश, विनय, हर्षा और बालू के तौर पर की गई है। अजीबोगरीब वाकये में एक चोर ने एम्बुलेंस गाड़ी की चोरी की, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर फिल्मी अंदाज में उसका कामयाबी से ताक़ुब किया। ये वाकया शहर हैदराबाद के हयातनगर में पेश आया। ये एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। इसका ताक़ुब करने के दौरान पुलिस का एक ओहदेदार जख्मी हो गया। चोर ने ट्रैफिक के दरमियान दिलेरी से गाड़ी दौड़ाते हुए इसको रोकने की कोशिश नाकाम बनाई। पुलिस की जानिब से इस एम्बुलेंस का ताक़ुब चिट्टियाल इलाके में उस वक्त खतरनाक रुख इख्तियार कर गया जब चोर ने एएसआई को गाड़ी से टक्कर मारी। वो एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये ओहदेदार शदीद जख्मी हो गया। उसके फौरी बाद हैदराबाद के खानगी दवाखाने में उसे इलाज के लिए शरीक किया गया। पुलिस ने इस गाड़ी को रोकने के लिए सूर्यापेट मंडल के टेकू मंटला में लारियों के जरिए एक रुकावट खड़ी की। इस ड्रामाई वाक़े का इख्तिताम उस वक्त हुआ जब एम्बुलेंस गाड़ी को बिलाकर रोक दिया गया। వాడు పొట్టు పొడ కూర్చొని పోతున్నాడు. तेलुगु फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर कल्याण ने कहा है कि आइंदा साल हैदराबाद में सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल मुनक्किद करने की तैयारियां की जा रही हैं। हैदराबाद फिल्म क्लब के इश्तिराक से इस माह की 15 तारीख तक मुनक्किद होने वाले 29वें यूरोपीय फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह डायरेक्टर एसोसिएशन के सदर वीर शंकर, सीनियर हिदायतकार आर नरसिम्हा राव और म्यूजिक डायरेक्टर सिल्लेखा ने किया। हैदराबाद के मजाफाती इलाके पेट बशीराबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल का तवाज़ुन खो देने के नतीजे में वो इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई और नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। महलूकीन की शनाख्त 23 साल कार्तिक रेड्डी और 23 साल अनिल के तौर पर की गई है। शहर हैदराबाद के एक थिएटर में तेलुगु फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ में खातून के वाक़े पर इस फिल्म के अदाकार अल्लू अर्जुन ने गहरे रंज का इजहार किया है।
उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर इस सिलसिले में एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, संध्या थिएटर में हुए अलमनाक वाक़े पर दिल की गहराइयों से शदीद सदमा हुआ। इस नाकाबिल तसव्वुर मुश्किल वक्त में गमज़दा खानदान के साथ मैं दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उस दर्द में अकेले नहीं हैं। गम की इस घड़ी में, इस मुश्किल सफर में इनकी मदद के लिए मैं पुरअज़्म हूँ। इस खातून के खानदान के साथ मुकम्मल ताउन का वादा करते हुए उन्होंने 25 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। అందరికీ నమస్కారం. మొన్న మేము పుష్ప సినిమాకి ప్రీమియర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ సంధ్యా థియేటర్కి వెళ్ళామండి. అక్కడ అనుకోకుండా క్రౌడ్ టర్న్అవుట్ ఎక్కువ అవటం వల్ల మేము సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత మాకు తెలిసిన విషయం అంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ దట్ ఆ క్రౌడ్లో ఒక ఫ్యామిలీ వచ్చారు. ఆ ఫ్యామిలీ కొంచెం దెబ్బలు తగిలినాయి. అండ్ ముఖ్యంగా ఒక లేడీ, ద మదర్ ఆఫ్ 2 చిల్డ్రన్, ఆవిడ రేవతి గారని, ఆవిడ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అన్ఫార్చునేట్గా ఆవిడ ఆ తొక్కి స్లాట్లో దెబ్బలు తగిలి ఆవిడ చనిపోయారని తెలిసింది. అది తెలియగానే మేము సుకుమార్ గారు, మేమందరం మొత్తం ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ పుష్ప అందరం సడన్గా డిసప్పాయింట్ అయిపోయి ఒక షాక్లోకి వెళ్ళాము. ఎందుకంటే అసలు ఇట్స్ వెరీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. ఎందుకంటే లాస్ట్ 20 ఏళ్ళుగా ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలకి మెయిన్ థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూసి వస్తాం అనేది ఒక తెలియని ఆనవాయితీ లాంటిది. అండ్ ఇన్నేళ్ళుగా ఎప్పుడు జరగలేదు. సడన్గా ఇది జరిగేసరికి మేమందరం కూడా చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యి చాలా షాక్లోకి వెళ్ళాం. ఈ న్యూస్ తెలిసిన వెంటనే ఆన్ ద ఫస్ట్ డే మేము కానీ ఎవరం కానీ టీమ్ కానీ ఎవరం కానీ ఈ పుష్ప సెలబ్రేషన్స్లో యాక్టివ్గా పాల్గొనలేకపోయింది. వి ఆల్ ఫీల్ వెరీ సాడ్. ఎందుకంటే మేము సినిమా తీసేదే జనాలు థియేటర్కి వచ్చి ఎంజాయ్ చేయాలని. అలాంటి థియేటర్లో ఇలా ఒక ఇన్సిడెంట్ అయ్యేసరికి వి ఆల్ అది మాటలో చెప్పలేకపోతున్నా. Firstly, I would like to say condolences to the entire family. Motto Revati gar family ki condolences from me and the entire team of Pushpa. మేము ఏం చేసినా ఈ లాస్, మేము ఏం చేసినా ఎంత మాట్లాడినా దిస్ లాస్ కెన్ నెవర్ బీ కవర్డ్. అండ్ మా సైడ్ నుంచి what we would like to say is that we want to tell you that we're emotionally there for you. మీకు ఏం కావాల్సిన, మాకు కుదిరినంత శక్తిలో మీకు ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా ఎలా కావాలన్నా we like to tell you that we like to be there for you. అండ్ నా తరపు నుంచి I'd like to donate an amount of rupees 25 lakhs. This is just as a goodwill gesture. అంటే నేను మీ వైపు I'm there for you. నా యాక్షన్స్లో చూడండి, నన్ను నమ్మండి, నేను మీకోసం ఉన్నాను అని ఒక జెస్చర్గా I'd like to give them 25 lakhs rupees for their future, to secure their future. And especially పిల్లలు ఉన్నారంట. సో టు టెల్ దెమ్ దట్ I'll be there for them. వాళ్ళకి ఏ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ కావాలన్నా కూడా we'll try to be there as much as possible అని ఒక గుడ్ విల్ జెస్చర్గా చేస్తున్నాం. అండ్ దీనికి జరిగిన మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్, దీనికి సంబంధం లేకుండా దీనికి జరిగిన మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్, మిగతా ఎక్స్పెన్సెస్ అంతా కూడా మేము వీడ్ లైక్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ కీప్ యూ కంఫర్టబుల్ ఎట్ దిస్ అవర్. ఎందుకంటే వీ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ టైమ్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ టు డీల్ విత్, అండ్ వీడ్ లైక్ టు డూ ఆల్ ద థింగ్స్ టు సపోర్ట్ యూ ఎట్ దిస్ అవర్. అండ్ నా తరపు నుంచి, మా ఎంటైర్ టీమ్ తరపు నుంచి మేము అందరికీ వీ లైక్ టు సే కండోలెన్సెస్ టు ద ఫ్యామిలీ. అండ్ నాదొకటే రిక్వెస్ట్, మేమంతా సినిమా తీసేదే మీరు థియేటర్స్కి వచ్చి బాగా ఎంజాయ్ చేసి, మీ ఫ్యామిలీస్తో వచ్చి మీరు ఎంజాయ్ చేసి ఆ సెలబ్రేషన్స్తో మిమ్మల్ని పంపిద్దామని. ఇలాంటి ఇలా సడన్గా జరిగినప్పుడు మేము కూడా కొంచెం మా ఎనర్జీస్ కూడా డౌన్ అవుతాయి. సో our entire intentions is to provide a good entertainment for you in your lives. Please, my kind request is that when you go to theatres, please be a little careful. మంచిగా చూడండి, సినిమా చూడండి, ఎంజాయ్ చేయండి, వచ్చి ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ హోమ్ సేఫ్. థ్యాంక్ యూ. यादाद्री पावर प्लांट के दूसरे यूनिट का इफ्तिताह, चीफ मिनिस्टर ने इसे कौम के नाम किया वक्फ। गुज़श्ता साल पार्टी के लिए इंतहाई कठिन रहा, केटीआर का बयान। रियासत में एक मरतबा फिर जलजले के झटके, महबूब नगर में वाक़या, कोई जानियो माली नुकसान नहीं। हैदराबाद में एम्बुलेंस की चोरी का अजीबोगरीब मामला, फिल्मी अंदाज में पुलिस ने ताक़ुब करके सारिक को पकड़ लिया।
कार नहर में गिर पड़ी, हैदराबाद के 5 नौजवान हलाक। और पुष्पा 2 भगदड़ वाकया खातून की मौत का मामला, फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन का इजहार रंज, मुतासरा खानदान के लिए 25 लाख की माली इमदाद का ऐलान। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।